नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और हम दोनों हैं इस वक्त कहाँ? नेशन नाउ पर एज यूजुअल। वी आर ऑलवेज ऑन नेशन नाउ एंड नेशन नाउ ऑफ कोर्स इज ऑलवेज विद यू, हमेशा आपके साथ। आप सबको जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। सो प्रदीप जी, दी शिंदे कमिटी रिपोर्ट रिकमेंडेशन दैट जो जिनके पास whosoever has got the proof for being Kunbi, बिल्कुल सर। and they have the proof from the time of the Nizam, Yes, yes. they should be given certificates of reservation. Exactly. How does that work? I mean, I'm not sure how This that seems to works. be, but I think Jarange Patil ने clear cut का either it's everything or nothing. Yes, all or nothing. He is not going to take it on paths. He No, says because I am this not is- going to settle on paths. Yeah, because this is absolutely crazy. I mean, now you're going, आप निज़ाम शाही के ऊपर जा रहे हैं वापस। मतलब ये मेरी समझ के बाहर है यार। ये क्या मतलब हुआ? ये मतलब उस वक्त रिजर्वेशन हुआ करती थी कुनबी के लिए, 2-3 और कास्ट के लिए रिजर्वेशन हुआ करती थी। इसकी वजह से आप ये मतलब उसको दोबारा वो करेंगे। और जैसे पासे पारदी जो हैं, बाकी अलग लोग जो हैं, उनको रॉबर ट्राइब्स कहा जाता था। So are you going to certify those people as robber tribes again? What are you going to do? I mean, this is not done. I find this very strange, and for Justice Shinde also to recommend something like this, I find it somewhat alarming. Unless and until the government has forced him, because they are under pressure at the moment, because the whole of Maharashtra is burning. The whole of Maharashtra is facing protests in every district, everywhere. So Yes, sir. All kind of speculations going on that the special session of the Vidhan Sabha will be called, Assembly special session will be called, and certain things are going to happen. Tomorrow again there is a cabinet meeting. Everybody has been called. Things are now the promise. In fact, Shinde ji, CM Chief Minister Shinde ji ने बात किए थे मनोज जरांगे पाटिल जी से। 2 घंटे कुछ बात हुआ उनका, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, nothing came out, but things seems to be done. But what can happen? The problem is, as we can speculate, क्या हो सकता है? One is a GR coming on the way. You got an all-party meeting also tomorrow. ऑल पार्टी मीटिंग होगा, एक रेजोल्यूशन पास कर लिए एंड गवर्नमेंट रेजोल्यूशन हो गया। और इस गवर्नमेंट रेजोल्यूशन को Sir, but the government resolution will apply as long as nobody takes you to court. अब जो कुनबी समाज है जिनके पास पहले से रिजर्वेशन है अभी, they are already protesting कि ये नए कुनबी कहाँ से आ गए? Because आप किसी का केक जो है, एक there's a size of the cake. Exactly. When you bring in more people, Yes, more yes. people have to share it. Exactly, sir. No, That's exactly what's happening. Let's ask Mr. Rakesh Shetty. And this shows a degree of political immaturity. We'll have Mr. Rakesh Shetty with us shortly. The problem with the government is that the Yes. Jarange Patil ji का fast उनको तोड़ना ही है. They need to see that Jarange Patil is out of it, because he's really अभी 6, 7, 8 अभी how long are you going to? And he's adamant. He says until you give the entire Maratha community reservations, I am not calling off the fast. And from tomorrow onwards, probably he's not having water also. बोले आज आप लोगों ने जिद किया, मैंने पानी पिया, कल से पानी भी नहीं पीऊंगा। I mean, all kinds of things are happening. ये छगन भुजबल साहब बात कर रहे हैं। छगन भुजबल साहब, प्रदीप जी, यहाँ सबसे बड़ी बात जो है, जो लक्ष्मण हाके जी ने यहाँ पर बोली, बहुत इम्पोर्टेंट है। सर, दी मंडल कमीशन रिपोर्ट ऑन OBCs have declared the Maratha community to be a forward community. They are not backward. They are not socially and economically backward. That's what the Mandal Commission report says. Now, how are you going to prove that the Maratha community is socially backward? सामाजिक तौर पर पिछड़े, सामाजिक तौर पर पिछड़े के 6-7 क्राइटेरिया होते हैं कि भाई आपका शोषण हुआ, सामाजिक तौर पर शोषण हुआ, लोगों के घर में आपको आमंत्रित नहीं किया गया, आप मंदिर में नहीं जा सकते, गांव के परिसर के अंदर आप नहीं रह सकते, लोग आपका बहिष्कार करते हैं, बेटी रोटी का रिश्ता नहीं रखते आपसे। मराठा ये कैसे साबित करेंगे सर? आप मुझे बताइए। मराठा इज द रूलिंग क्लास है सर। रूलिंग क्लास में ही आपस में झगड़ा है। नारायण राणे, मिस्टर रामदास कदम सेज हम कुनबी मराठा है ही नहीं, तो हम कुनबी मराठा का सर्टिफिकेट से लेंगे। वी विल नॉट टेक सर्टिफिकेट। इन फैक्ट यू ऑलरेडी स्टार्टेड डिविजन्स द रैंक एंड फाइल ऑफ द मराठा कम्युनिटी विद certain top leaders saying who are Marathas and who play a great role to see some Maratha reservation is there, refusing to be Kunbi. लेकिन यहाँ पर प्रदीप जी सबसे बड़ी बात है 96 कुनबे हैं, 96 बिल्कुल, जिसमें लोहार भी आते हैं, सुतार भी आते हैं। यस सर। अलग अलग प्रोफेशन के लोग भी आते हैं, जो सब लोग छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में थे। ये सब लोग थे, so they were called Marathas.
मराठा फौज में थे ये सब लोग। अब आप कुनबी जो हैं वो दे आर टिलर्स ऑफ द सॉइल, जो किसानी का काम करते हैं, तो इसलिए उनको कुनबी कहा जाता है। अब मेरा ये कहना है कि this shows a level of immaturity from the government, and I am very surprised at Mr. Devendra Fadnavis. मतलब I expect Mr. Devendra Fadnavis to come out with a proper, balanced and objective approach. Now, I'm sure if he had been chief minister, I don't think this crisis would have occurred, very frankly speaking. That is my opinion. Sir, if you look at the other way, now what you're saying is right. Mr. Fadnavis had a great degree of administration capacity, knowledge, and this prakar se hai. But here, this triple engine's government has the direct support of Prime Minister Modi and Amit Shah and JP Nadda. They are monitoring their day-to-day activities. They're helping them in day-to-day activities, and I can see how Prime Minister Modi and Amit Shah, Home Minister Amit Shah, treats Eknath Shinde with a super, you can say, high degree of comfort and admiration when he's along with the. I've never seen this with other chief ministers of other states. The kind of affection Prime Minister Modi gives to Eknath Shinde. So Eknath Shinde, as on today, has a complete blessings of Prime Minister Modi and Amit Shah. I agree. If you see the stage display, the stage body language, anytime he comes to Maharashtra, there's a great, fantastic body language between the Chief Minister Eknath Shinde and Prime Minister Modi and Amit Shah also. In fact, when he goes to Amit Shah's office, he makes him sit very close by, near to him, and the amount of respect is not seen with other chief ministers जितना होता है। लेकिन प्रदीप जी, जहाँ तक कि अभी महाराष्ट्र सरकार का प्रश्न है, जैसा हर एक कोई बोलता है, जो पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया गया था, ठीक है, उसमें आपने विमेंस एम्पावरमेंट बिल जो है, विमेंस रिजर्वेशन बिल वो पास कराना था, वो पास हो गया, लेकिन उस वक्त मराठा रिजर्वेशन भी पास करा देते, उसमें क्या है? अब जो 102 की जो अमेंडमेंट है, उसको 102 1A कर देते, 1A as a sole exception in this particular case, where you could have provided for more than 50% A. Number two, where you could have certified that as of today, the Maratha community is also socially backward. The parliament is so determined. ठीक है, बाद में केस लड़ते रहते लोग, जाता रहता केस सुप्रीम कोर्ट में जाता। But everybody believed, everybody thought that this entire special session was called only for this, for actually solving the Maharashtra crisis. So why do you think the BJP is delaying? Could it be what Mr. Hemant Kamble said? Could it be because of what Mr. Hemant Kamble said? He said कि ये एजिटेशन को चरम सीमा पर लाने का, उसके बाद उनको रिजर्वेशन दे दिया जाएगा, और चुनाव में जीतने के बाद ये कहेंगे भाई सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया, हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? 5 साल आप देख लो, 5 साल जो देखना करना, और 5 साल मिल गए आपको। Prime Minister Modi is a hard taskmaster. Prime Minister Modi is a very hard taskmaster. He doesn't give anything so easily. So probably उन्होंने कहा कि आप थोड़ा और मेहनत कीजिए। लेकिन प्रदीप जी, मुझे ऐसा लगता है कि the government has behaved with a lot of immaturity. I think, or perhaps Mr. Ajit Dada Pawar is not participating in the entire thing. ये भी हो सकता है कि अजीत दादा पवार साहब उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे बहुत अच्छी तरीके से, because both Devendra Fadnavis and Ajit Dada Pawar are very good administrators. Mr. Eknath Shinde is a very practical man, but in terms of the nitty-gritty of the philosophical side of the way governance has to be carried out, perhaps he needs a little bit more maturity. At the moment, let's ask Mr. Rakesh Shetty. I think he's with us. Rakesh Shetty Sahab, namaskar. Rakesh Shetty Sahab, can you hear me, sir? I think his, yeah, I can see that the frame is frozen. He's not frozen. It's not frozen. It is not frozen. The frame is not frozen. Who said the frame is frozen? As usual, nothing new. Nothing new as far as the audio issue is concerned. I mean, amazing. But all I'm saying is that there is a certain amount of political maturity and sagacity needed to be displayed over here with regard to the Maratha agitation. As Mr. Sharad Pawar said, why did you give a 30-day deadline and extended it by, say, another 10 days? You know pretty well it's not possible in 40 days. और ये जो निज़ामशाही की बात हो रही है और जो कैबिनेट ने एक्सेप्ट भी कर लिया है, ये तो बहुत पहले से ही था।
तो वो तो बहुत पहले ही आप एक्सेप्ट कर लेते, उसमें क्या है। वही जाकर के झरंगे पाटिल जी को देते कि भाई अभी ये दे रहे हैं, उसके बाद बाकी सब चीज़ों पे काम करेंगे, तब तक आप जो है अपना फास्ट वगैरह बंद कीजिए। Right, let's go across to Mr. Shetty. I think Mr. Shetty is now with us. I don't want to lose him again. Mr. Shetty, good evening. Good evening, Vande Mataram, sir. Vande Mataram, sir. Namaskar. How are you? How are you? Good, good. Sir, as we were discussing, Pradeep ji and I were discussing that the government is displaying a lot of immaturity with regard to the Maratha agitation. I mean, what is this? कि भाई निज़ाम शाही के वक्त के आप पुरावे ले आइए और वो हम आपको कुनबी सर्टिफिकेशन दे देंगे. All that. What is going on really? Rakesh Shetty sir, politically, what is going on over here? I find this unbelievable that the Maharashtra government can behave like this. Shetty sir. Sir, you know the background of the entire case. Yes. 2013, while we are just about to depart from the government, we had brought the reservation for Maratha. Yes. And 2014 में मुख्यमंत्री बने देवेंद्र फडणवीस जी, और आप जानते हैं कि सदावर्ते नाम का एक एडवोकेट है जी, वो इसके खिलाफ चले गए सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने इसको स्टे करवा दिया जी. उसके बाद वापस देवेंद्र फडणवीस जी ने मराठा आरक्षण लाया, वो उसको भी रद्द हो गया सुप्रीम कोर्ट से. मेरा ये कहना है कि महाराष्ट्र सरकार का ये जिम्मेदारी बनता है कि जब पूरे देश में आप ये डंका बजाते हो कि डबल इंजन की सरकार, तो क्या आप एक स्पेशल पार्लियामेंट सेशन नहीं बुला सकते क्या? क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो मराठा आरक्षण पे स्थगिति लाया है वो इस ग्राउंड पे लाया है कि जो रिजर्वेशन का जो सीलिंग है 50% के ऊपर नहीं जा सकता करके. मगर आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद उन्होंने 10% मतलब 50% के ऊपर जाके 10% का सीलिंग ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्वेशन लाया था जी. मेरा ये कहना है कि आप उसी ग्राउंड पे एक स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बुलाइए और आप मराठाओं को ये जो 50% का सीलिंग हटाइए, ताकि जब स्टेट गवर्नमेंट ये प्रस्ताव मराठा आरक्षण का लेके आएगा तब वो पास हो जाए. अब भाजपा सरकार ये चाहती है कि महाराष्ट्र में वो मराठाओं को रिजर्वेशन देना नहीं चाहती. आज हम देखते हैं कि कुछ न्यूज चैनल में वो नैरेटिव चलाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि अरे मराठा तो वीर मराठा है, उनके पास सब शुगर फैक्ट्री उनके पास है, दूध के कारखाने उनके. अरे बात वो तो सिर्फ 5% मराठा है. 95% मराठा जो है उनके पास खेती बाड़ी है, वो खेत में काम करते हैं. उन किसी के पास आधा एकड़ जमीन है, किसी के पास 1 एकड़ जमीन है और एम्प्लॉयमेंट नहीं है ये बच्चों को. इसलिए वो लोग आज बाहर आके सड़क पे आके मराठा आरक्षण मांग रहा है. अगर ये 10 साल में नरेंद्र मोदी जी अगर इस देश में एम्प्लॉयमेंट लाया होता और इन बच्चों को काम दिया होता तो ये अनरेस्ट नहीं होता. आप ये समझ लीजिए बात को. दिस इज नॉट ओनली अबाउट मराठा रिजर्वेशन, इसमें जॉबलेस है लोग, इंजीनियरिंग करके, बीकॉम करके, एमबीए करके, दे आर सिटिंग एट देयर होम, उनके पास जॉब नहीं है. 10 साल में ऐसा कोई मेजर इन्वेस्टमेंट्स नहीं आए, इंडस्ट्रीज नहीं आ रहे. क्यों? क्योंकि पूरे देश का इमेज ये लोग जो कुछ लोग ये हिंदुस्तान जो मल्टी डाइवर्स कंट्री है उसको वो लोग सबको आरएसएस का यूनिफॉर्म पहनाना चाहते हैं. ऐसा जो विचारधारा अगर देश का बन जाएगा तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी और उसका ये रिजल्ट है कि आज लाखों नौजवान जो है जरागे पाटिल जी के साथ खड़े हैं. 4-5 दिन पहले जब उनका सभा हुआ आपने देखा होगा, पुलिस रिकॉर्ड ये बताती है कि 10 से 12 लाख मराठा उस ग्राउंड मैदान में मौजूद थे. तो मैं ये पूछ रहा हूं, अगर नौजवानों को नौकरियां दिया जाता है भाजपा सरकार में, केंद्र हो राज्य हो, तो इतना बेकारी नहीं बढ़ती. और बेकारी अगर नहीं होता तो इतने लोग जमा नहीं होते सर. आपको आज मराठा दिख रहा है, कुछ दिन रुक जाइए. देवेंद्र फडणवीस जी जब सरकार में नहीं थे तब उन्होंने दंगल समाज को भी रिजर्वेशन का वादा किया था. जी किया था. आप कुछ दिन रुक जाइए, दंगल समाज के भी बच्चे सड़क पे आ जाएंगे. आ गए हैं सर, आ गए हैं. और मैं आपको बता देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी
मराठास के जो युवा है उनको मिसगाइड करने का काम कर रहे हैं, ओबीसी के जो बच्चे हैं उनको मिसगाइड करने का काम कर रहे हैं। और जिस तरह आपने देखा कि गुजरात में क्या हुआ, मणिपुर में क्या हुआ, गुड़गांव में, हरियाणा में क्या हुआ, सांगली में क्या हुआ, अब ये लोग महाराष्ट्र में मराठा वर्सेस ओबीसी दंगल करवाना चाहते हैं सर। इसका कारण है, आप देखिए इनके कुछ नेता जिस प्रकार के स्टेटमेंट दे रहे, क्या है, मराठास आरक्षण मांग रहे। आपको पता है कि आरक्षण आप उनको दे नहीं पा रहे क्योंकि 50% का सीलिंग है। तो सीलिंग कौन हटा सकता है? कोर्ट के पास अथॉरिटी नहीं है। किसके पास अथॉरिटी है? केंद्र सरकार के पास है। तो आपके पास डबल इंजन की सरकार है, तो आप सीलिंग को बढ़ाइए और इनको आरक्षण दे दीजिए। लेकिन राकेश शेट्टी साहब, यहाँ पर दो चीजें आती हैं, सिर्फ 50% सीलिंग का मसला नहीं। आई एग्री, अमेंडमेंट 102 उसके हिसाब से देयर इज अ सीलिंग 50% की। उसके अलावा मंडल कमीशन रिपोर्ट में मराठास हैव बीन डिक्लेयर्ड एज अ फॉरवर्ड कम्युनिटी। दे से दे आर नॉट सोशली बैकवर्ड। पॉइंट इज, सुप्रीम कोर्ट की जो अगर आप जजमेंट पढ़े हैं, where they have rejected reservation for Marathas, there are two things there. One, of course, is the 50% ceiling. The second is, how are they socially backward? You have to prove that. उसके पूरे पुरावे आपको देने पड़ेंगे कि किस प्रकार उनका सामाजिक शोषण हो रहा है, मराठा जो 96 मराठा जाति है उनका। लेकिन मैं आपसे एक दूसरा सवाल पूछता हूं, जो शरद पवार साहब ने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, और वही चीज अभी हाल ही में अशोक चौहान साहब ने कही। अरे भाई, आपको क्या जरूरत थी ये बोलने की कि मैं 30 दिन के अंदर सब कुछ कर दूंगा, उसके बाद फिर 10 दिन का एक्सटेंशन ले लिया। यू नो यू कैन नॉट डू इट सर। दिस इज नॉट द रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ऑफ अ गवर्नमेंट। राकेश शेट्टी साहब, देखिए, आप जब, आपको याद होगा, आप देवेंद्र फडणवीस जी को जानते नहीं है, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। जब ये एमएलए नहीं बने थे जी, तब उन्होंने विदर्भ का मांग किया था, अलग विदर्भ का डिमांड किया था, करेक्ट बराबर। और तब उन्होंने कसम खाया था कि जब तक अलग विदर्भ नहीं बनेगा मैं शादी नहीं करूंगा। और बाद में शादी भी होगी, बच्चे भी आओगे। दोनों वादा थोड़ी दिया उसने। और एक बताता हूँ सर, 2013 में वो लीडर ऑफ अपोजिशन थे सर, प्रदेश अध्यक्ष थे, आपको पता है जी। तब उन्होंने दंगल समाज को वादा किया था कि आपको रिजर्वेशन दूंगा। सर यही नहीं क्या, आप एक चीज भूल रहे हैं। उन्होंने कहा था जिस दिन मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, पहली कैबिनेट मीटिंग में दंगल समाज को मैं रिजर्वेशन दे दूंगा, ऐसा बोला था सर। जी जी शेट्टी साहब। और एक उन्होंने बताया था, पूरे महाराष्ट्र के बच्चा जानता है कि भारतीय जनता पार्टी वोट मांग रही थी, तब बोल रही थी टोल मुक्त महाराष्ट्र जी। ये देवेंद्र फडणवीस जी कहते हैं। उसके बाद 5 साल सीएम रहे और अभी वापस 1 साल से वो डेप्यूटी सीएम है, और ये सरकार का पूरा करता धरता देवेंद्र फडणवीस जी। मुझे ऐसा लगता है कि अब एकनाथ शिंदे बुरी तरह फंस चुके हैं, और उसका कारण ये है कि उनको किसी ने मिसगाइड किया है। अगर उनको ये प्रॉमिस मराठा समाज को पूरा नहीं कर सकते थे तो आपको प्रॉमिस नहीं करना चाहिए था। आपने देखा होगा, आजाद मैदान में खड़े होकर मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी ने महाराष्ट्र की जनता से वादा किया था कि हम जल्द से जल्द टाइम पीरियड दिया कि हम मराठा आरक्षण दे रहे। सर छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के सामने उन्होंने शपथ ली छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से। इतनी बड़ी बात है सर जी। आप देखिए कि आज मनोज जरंगे पाटिल को जो सपोर्ट आप देख रहे हैं ना, पूरे महाराष्ट्र से लोग उनके साथ जुड़े हुए, अलग अलग गांव में अभी तक 7 मराठा युवकों ने अपनी जान दे दी। ये नंबर बढ़ेगा, ये बहुत सीरियस इश्यू है। 5.5 करोड़ मराठा है पूरे महाराष्ट्र में जी। कैन यू इमेजिन, 50 लाख भी लोग सड़क पे उतरेंगे तो केओस हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है महाराष्ट्र सरकार को इनको बहुत सीरियसली लेना चाहिए और इसको सही कदम उठाकर मराठा आरक्षण देना चाहिए। शेट्टी साहब, the government has called an all party meeting. The government has, state government has called an all party meeting. कैबिनेट भी हुआ, फिर से कैबिनेट होगा, मीटिंग होगा। What can you expect? There is speculation that a special session will be called. अलग अलग प्रकार का स्पेकुलेशन चल रहा है। फिर स्पेकुलेशन चल रहा है कि गवर्नमेंट रेजोल्यूशन आएगा और गवर्नमेंट रेजोल्यूशन, बट
वही है जरंगे पाटिल जी, मनोज जरंगे पाटिल जी कह रहा है कि आई एम नॉट सेटल फॉर एनीथिंग लेस देन कंप्लीट मराठा रिजर्वेशन। तो आप अगर कुणबी मराठा को भी सर्टिफिकेट दे रहे हो, ही इज नॉट हैपनिंग, ही इज नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्ट, और वो आंदोलन से बाहर निकलने वाला नहीं है अंटिल द एंटायर मराठा कम्युनिटी। तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट वाज द सॉल्यूशन? इवन इफ you called a special session of the assembly and everybody has said we'll support this, you know, Supriya Sule बोले कांग्रेस, everybody, तो what do you see? आप speculate क्या करते हैं, क्या होने वाला है? Is this a big game plan? एक बड़ा गेम प्लान है? भारतीय जनता पार्टी का लाइन ऑफ एक्शन बहुत क्लियर है। अगर आपने देखा होगा कि नारायण राणे जैसे बड़े मराठा लीडर जो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उन्होंने खुलेआम स्टेटमेंट दे दिया मनोज जरंगे पाटिल के खिलाफ। उन्होंने ये कहा कि अगर ओबीसी का सर्टिफिकेट हमें दिया जाता तो मैं तो नहीं लूंगा और मैं किसी को लेने भी नहीं दूंगा। मतलब खुद भारतीय जनता पार्टी का इसको विरोध है। और एडवोकेट सदावर्ते, सब लोग जानते हैं कि ये देवेंद्र फडणवीस जी का कार्यकर्ता है, जो ये पूरा मामले को फंसाया, जिसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका करके ये एडवोकेट के ऊपर कुछ दिन पहले हमला भी कुछ मराठे युवकों ने उनके गाड़ियां का तोड़फोड़ किया। हम लोग उसका तो निषेध करते हैं कि वायलेंस नहीं होना चाहिए, मगर सब लोग जानते हैं कि इस पूरे आरक्षण के खिलाफ अगर कोई है तो डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस जी। तो इज द मास्टरमाइंड। नाउ कैन वी जस्ट गो अबाउट द टॉपिक। आज राहुल गांधी जी ने मोदी अडानी के रिश्ते पर बहुत आलोचना करने लगा। राहुल गांधी जी का राजा के जान तोते में है। प्राइम मिनिस्टर इज एम्प्लॉयड बाय अडानी जी। मोदी की आत्मा अडानी में बसती है। नो, ऑल दिस काइंड्स ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स कमिंग फ्रॉम राहुल गांधी एंड हैक्स। यस, या फिर आगे जाके कहता है कि कोयले में अडानी, एयरपोर्ट में अडानी, पोर्ट्स में अडानी, प्रो मोनोपोली यानी अडानी, एंटी मोनोपोली जनता का कंट्रोल। विल कम बैक टू द अदर थिंग्स। ये जो अडानी पर डायरेक्ट अटैक किया है, हाउ डू यू सी इट राकेश शेट्टी साहब? राहुल गांधी इज गॉन फुल लॉन्ग अटैक, फुल अटैक कर दिया। आज इतने तेज अटैक कभी देखा नहीं रिसेंट टाइम्स में। कल शाम को करीबन सभी बड़े अपोजिशन लीडर जैसे कांग्रेस के हुआ या शिवसेना, टीएमसी के हमारे शशि थरूर, मल्लिकार्जुन, जो लोग एप्पल यूजर थे जी, उनको एक वार्निंग मैसेज आ गया एप्पल से जी, saying that your mobile is being monitored by state sponsored hackers. yes, and ये नोटिफिकेशन इनके पास आया। यू नो दैट आईफोन ये बहुत बड़ी कंपनी है और जो लोग आईफोन यूज करते हैं ये उसके सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के लिए वो यूज किया जाता है मोबाइल जी। और जब इतनी बड़ी कंपनी ने क्लियर मैसेज नोटिफिकेशन अगर आपको भेजती है कि आपको स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकिंग चल रहा है और यू शुड बी वेयर बिकॉज दे कैन रीड योर मैसेज, दे कैन सी योर वीडियोस, दे कैन ओपन योर गैलरी एंड ऑल, तो कुछ लोगों ने ट्वीट किया और सुबह तक देखा तो करीबन 18 लोगों के वो इस देश में लीडर ऑफ अपोजिशन और अपोजिशन पार्टीज के कुछ बड़े नेताओं को ये मैसेजेस आया। उसके बाद आज 2 बजे को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया। उनका यही कहना था कि जिस तरह 2019 में पेगासस, इजराइल बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी पेगासस मोबाइल में पाया गया और उसके बाद हैकिंग किया गया, सिमिलर ग्राउंड पे अभी आईफोन को टारगेट किया गया। मगर मैं ये पूछना चाहता हूं, उसके बाद जो बीजेपी का आईटी सेल हेड करते हैं मालविया जी, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि नहीं, आईफोन ने तो करीबन 150 कंट्रीज में ऐसे मैसेजेस भेजे। तो इंडिया में मुझे एक भी भारतीय जनता पार्टी का टॉप लीडर जो लोग आईफोन यूज कर रहे हैं उनको तो ऐसे कोई मैसेज आया नहीं। वाई आईफोन ने सिर्फ लीडर ऑफ अपोजिशन और अपोजिशन पार्टीज के लीडर को ही क्यों नोटिफिकेशन भेजा? एंड सम जर्नलिस्ट करेक्ट। Yes. तो क्यों, मतलब आज जब जो लोग अदानी को टारगेट करते हैं, जो लोग अदानी को इलीगल तरीके से आप उनको पोर्ट, एयरपोर्ट, कोयला दे रहे, धारावी दे रहे, कोल इंपोर्ट मोनोपोली सर। हाँ, तो ये आप दे रहे हो तो, और जो लोग प्रश्न उठा रहे उन्हीं को आप लोग हैकिंग कर रहे हैं, उन्हीं का उनको नोटिफिकेशन आया है। तो मेरा ये प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी, ये हमारा राइट टू प्राइवेसी है और बहुत सारे जैसे
शिवसेना का प्रवक्ता है, महिला है, उनका फोन पे भी आप हैक कर रहे हो। आप लोगों में आपके दर्शक को भी बता देना चाहता हूं, जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे और अमित शाह वहां पे गृह मंत्री थे, उस समय में भी एक स्नूप गेट करके एक मामला आया था जी। तब बैंगलोर बेस्ड एक इंटीरियर डेकोरेटर आर्किटेक्ट थी, जिनको ये लोग मॉनिटर कर रहे थे, और उस यूट्यूब में उसका वीडियो भी कोबरा पोस्ट ने डाला, आप लोग ने सुना भी होगा ये चीज को। सिमिलर ग्राउंड्स पे आज ये प्रधानमंत्री बनने के बाद भी सेम हरकत आपका चालू है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत शर्म की बात है, क्योंकि 2019 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा है कि किसी का भी फोन हैक करना इज वायलेटिंग देयर राइट टू प्राइवेसी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस चीज से बचना चाहिए और ऐसे काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसको एक बहुत बुरा उदाहरण जनता के बीच में जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर शेट्टी साहब, शशि थरूर साहब ने, राहुल गांधी जी ने और यहाँ तक कि प्रियंका गांधी जी ने भी ये कहा है, इससे क्लियर कट है कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। उनको मालूम है कि 2024 में वो हारने वाले हैं। शेट्टी साहब बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए ये बात तो अभी जग जाहिर है, इन्होंने बहुत सारा ट्रोल आर्मी निकाल दिया, सब कर रहे। और मैं प्रदीप जी का कंटिन्यू करना चाहता हूँ 2 मिनट। जी बोलिए ना सर। तो जो ये एप्पल का बताया, आपको बताता हूँ, गवर्नमेंट ये काम कर रही है कि हमारे सब फोन्स को हैक करके कर रहे हैं, और इंटरनेशनल हैकर्स ने 2 हफ्ते पहले एक रिपोर्ट आया, 86 करोड़ लोगों का डेटा, 86 करोड़ लोगों का आधार का लिंक किया हुआ डेटा उन्होंने निकाल लिया है, और ऑल इंडिया मेडिकल काउंसिल के डेटाबेस में से उन्होंने बाहर निकाला है, और फिर से वो डेटा देने के लिए $80,000 यूएस डॉलर डिमांड किया है। मतलब अपना साइबर सिक्योरिटी कितना वीक है। मतलब एक तरफ है सरकार आप हमारे ऊपर हैकिंग कर रही है, और इंटरनेशनल हैकर्स गवर्नमेंट के डेटा जो आधार है उसके ऊपर हैक किया गया। ये आप रिपोर्ट शायद आप लोगों ने पढ़ा नहीं, मगर 2 हफ्ते पहले सर ये रिपोर्ट बाहर आई है। बिल्कुल, यस 86 करोड़ से सर, and it's available on the dark web. Yes. They say they are willing to auction off that data of 86 crore Indians, and including their COVID-19 tests. Correct. That's also available. By the way. Sir, then where is the security? आप There is- CAG रिपोर्ट देखिए सर, आप CAG रिपोर्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। उसका कहना ऐसा है कि जो पैसे डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं ना, एक मोबाइल फोन को 14 लाख लोगों को एक मोबाइल फोन से रजिस्टर किया है गवर्नमेंट जी। तो ये सब सीएजी ने जो प्रश्न उठाए द्वारका एक्सप्रेसवे पे, मतलब 500 करोड़ रुपया 2 किलोमीटर का कॉस्ट आया द्वारका एक्सप्रेसवे पे, कोई जवाब सरकार देना नहीं चाहती। जो बेसिक इश्यूज है उसको एड्रेस नहीं करना चाहती। राहुल जी ने आज बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला, उन्होंने कहा कि ये अगर मनमोहन सरकार होती या वाजपेयी जी का सरकार होता और इस तरह लोगों के फोन पे पेगासस या आईफोन का नोटिफिकेशन आया होता, पूरा सरकार हिल जाती। मगर आज कोई रिएक्शन नहीं है। नरेंद्र मोदी इतने पावरफुल लीडर है, उनको कोई ये बड़े इश्यूज पे कोई रिएक्शन नहीं देते, ना उनके लोग देते। और आज नेशनल मीडिया उनके पास ऐसा है कि कोई गवर्नमेंट से क्वेश्चन नहीं करती है, उल्टा अपोजिशन से क्वेश्चन करती है। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो बना है वो सरकार को मॉनिटर करने के लिए बना है, मगर ईडी सरकार के मंत्रियों को नोटिस नहीं भेजती है। जो लोग घर पे बैठे अपोजिशन में उनको नोटिस भेज रही है। मतलब इस देश में हो क्या रहा है जनता देख रही है राजू जी, और बहुत जल्द जब उनका बारी आएगा 2024 में और अब 5 राज्यों के चुनाव में, आपको इसका रिजल्ट दिखेगा सर। You know, Rakesh Shetty ji, Rahul Gandhi has been time and again telling right now continuously, बार-बार राहुल गांधी जी कहना है कि opposition is being targeted. Opposition is being targeted. There is right-wing activism जो 4-5 चीज डेमोक्रेसी। Now केजरीवाल जी को जिस प्रकार से समन्स गया, केजरीवाल जी has got summons saying that कोर्ट में जिस प्रकार से बेल रिजेक्ट हो गया और 338 करोड़ का ट्रेल जो मिला है आम आदमी पार्टी के हिसाब से, आम आदमी पार्टी एंड द बीजेपी फुल फ्लेश अटैक कर रहा है कि
This scam cannot happen without Arvind Kejriwal's approval. इतना बड़ा स्कैम अरविंद केजरीवाल के अप्रूवल के बिना नहीं हो सकता है. So what do you think? जो राहुल गांधी जी बार बार बोल रहे हैं कि opposition is being targeted, judiciary is being intimidated, right wing activism is on the forefront. तो ये सब सच धीरे धीरे डेमोक्रेसी लोकतंत्र खतरे में है. राकेश शेट्टी जी क्या ये धीरे धीरे पूरे देश और दुनिया देख रहा है कि सच्चाई में बदल रहा है. देखिए अरविंद केजरीवाल अगर कल इंडिया अलायंस तोड़कर एनडीए में चले जाते, मतलब भाजपा के साथ चले जाएंगे, तो ये इंक्वायरी उधर का उधर बंद किया जाएगा, मनीष सिसोदिया को भी बाहर लाया जाएगा और सब चंगासी हो जाएगा. जिस तरह महाराष्ट्र में हसन मुश्रीफ जी के ऊपर वारंट पेंडिंग है, वो मिनिस्टर बन जाते हैं. अजित पवार के रिलेटिव्स के 110 करोड़ के एसेट इनकम टैक्स ने सीज किया है, वो डेप्यूटी सीएम है. छगन भुजबल जी के ऊपर खुद ये लोग ने ही जेल भेजा, वो आज मंत्री है. अपने सुनील तटकरे की लड़की यहाँ पे बनी है, सुनील तटकरे जी के ऊपर वारंट इशूड है, वो उनकी लड़की अभी कैबिनेट मिनिस्टर है. मतलब जो लोग को ईडी का नोटिस जाने के बाद अगर वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाते हैं तो उनको अवार्ड दिया जाता है. जैसे वो असम में हेमंत विश्व शर्मा जी 2014 में नोटिस आया तो हमने कैबिनेट में मंत्री थे निकाल दिया, इन्होंने चुनाव के बाद उनको सीएम बना दिया. मुकुल रॉय जी का आपको पता है, जब उनको नोटिस शारदा स्कैम में गया था, वो भारतीय जनता पार्टी में गया तो उनको क्लीन चिट दे दिया, अभी वापस तो टीएमसी में आ गए. तो देयर इज मोर देन 79 केसेस जिनको हमने जॉट डाउन किया है, जिनको ईडी के नोटिस देने के बाद वो लोग भारतीय जनता पार्टी के फेवर में गए. नारायण राणे 2014 में नोटिस आया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया. तो बड़े बड़े नेता ऐसा लिस्ट है. तो मेरा तो ये कहना है, जो आरोप आप आम आदमी पार्टी के ऊपर लगा रहे, मैं बोलता हूँ कल ये लोग बीजेपी की तरफ चले जाएंगे. आपको कोई इन्फॉर्मेशन है, जैसे बजाज साहब पूछते रहते हैं, आपको कोई इन्फॉर्मेशन है कि आम आदमी पार्टी विल ज्वाइन? आपको लग रहा है कि ये कुछ ये लोग जानते हैं कि ऐसा होना बहुत मुश्किल है, बिकॉज़ जो हमने अरविंद केजरीवाल को अभी तक समझा है, he is a fighter and he will fight back. That's what we know. No, he's not going to join. He's not going to join. वो that time is past. That time is past. एक साल पहले कर सकते थे, लेकिन अभी impossible. और especially मनीष को, very strange. I don't want to comment on what the court has done. I mean that is the court's prerogative, of course. लेकिन very strange, isn't it, राकेश शेट्टी साहब? जस्टिस खन्ना पूछते हैं कि his lordship जस्टिस खन्ना एक तरफ पूछते हैं, where is the proof? Your case will not stand even for 2 minutes, and bail is denied. The same thing happened with संजय राउत. Yes. संजय राउत को जब जेल भेजा गया और मुझे लगता है 2 महीने तक वो he was behind bars. Yes. फाइनली हाई कोर्ट ने पूछा, कुछ प्रूफ नहीं, कोई वो जो बोरीवली का जिस प्लॉट के साथ इनको बता रहा था, there is not a single transaction. He was not the partner to that plot. He was not even a director of the company. He was questioning भारतीय जनता पार्टी. संजय राउत को आपने जेल भेज दिया. But here the Supreme Court has denied bail, sir. As Mr. Kapil Sibal has just tweeted, the process itself has become the punishment. Correct. I mean, this is unheard of in India. भारत में आज तक कभी पहले ऐसा नहीं हुआ है, सर. कि मगर बजाज साहब, आप अगर कोर्ट का प्रोसीडिंग अगर आप देखते हैं जनरली, आपको अरेस्ट किया मतलब आप मुलजिम नहीं होते. अरेस्ट किया मतलब आप कहीं भागो नहीं और आप किधर टैंपर ना करो, इसलिए अरेस्ट किया जाता है. और जब आपको 2-3 महीना इस प्रोसेस में चला जाता है और आपको बेल दिया जाता है, तो जब जितने टर्म आप अंदर रहे, वो लोग इसलिए उसको जुडिशियल कस्टडी कहते हैं. जी. यू आर अंडर द जुडिक्शन ऑफ अ जज, और वो जेसी इसलिए दिया जाता है, और एंड यू हैव टू प्रूव दैट यू आर नॉट गिल्टी. इंस्टेड ऑफ गवर्नमेंट प्रूविंग दैट ही इज गिल्टी, बेल लेने के लिए आपको प्रूव करना पड़ता है यू आर नॉट, that you are innocent. Yes. You are innocent. The whole thing has been turned upside down. Correct. Yeah, now you have to prove. Instead of what has happened is, it's very easy for the investigative agencies right now. Just arrest somebody,
and everything is turned on its head. So which means that the investigative agencies don't even have to work. Correct. They don't have to work to prove that a person is guilty. They don't have to collect any evidence. Nothing. You have to collect evidence on your behalf. And in this process, you at least required 3 months time. In No, 3 months to 6 months now. 180 days सेंट्रल एजेंसीज 6 महीने तक सेठी साहब 6 महीने तक कोई राहत नहीं है. अरे संजय राउत was an exception 3 महीने में वापस आए बाहर. अरे सत्येंद्र जैन has been in jail for over a year यार, 1 साल हो गया है. मतलब I find this very strange. And here the court has pointed out the figure also. The figure came out in the Supreme Court, 338 crores. And the court has also granted 8 months time for investigation. So, तो मतलब 8 महीने के लिए तो गए. तो No, but very surprising, प्रदीप जी and बजाज साहब, ये जो लोगों को ईडी के नोटिस गए और वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए, हर्षवर्धन पाटिल है, अरशद मुशर्रफ है, बहुत सारे लोग, तो इनका इन्वेस्टिगेशन क्या हुआ जी? क्या ठंडे बस्ते में आपने डाल दिया और इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हो रहा? मतलब हाई कोर्ट का वारंट पेंडिंग है, यू कैन एनी टाइम गो एंड अरेस्ट. ऐसे लोग अभी कैबिनेट मिनिस्टर है. तो मुझे ऐसा लगता है ना कि देश की जनता देख रही है और समझ रही है जी. मुझे लेकिन ये आप बताएं सर कि जिस प्रकार अभी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आम आदमी पार्टी की, वो कहते हैं कि हमें लग रहा है कि अरविंद भी अरेस्ट होंगे. 2 नवंबर को जो उनको तलब किया गया है, लग रहा है उनको भी अरेस्ट कर लिया जाएगा. उधर टीएमसी में 2-3 मंत्रियों को भी अभी अरेस्ट किया गया है. उसके अलावा इधर आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में भी नोटिस भेजे गए हैं. कांग्रेस के तो ना जाने कितने लोगों को नोटिस भेजे गए हैं. तो क्या स्ट्रेटेजी ये है कि चुनाव के पहले सबको जेल में डाल दिया जाए? नहीं, ये क्या है, एक इंडिया जो अलायंस बना है जी, ये भारतीय जनता पार्टी बहुत घबराई हुई है, ये फैक्ट है. एंड ये जो 5 स्टेट्स के रिजल्ट भी उनके फेवर में नहीं आ रहे. सो आउट ऑफ डेस्परेशन उनको पता नहीं क्या करना चाहिए करके उनके पास एक ही है कि अभी इनके जो लीडर्स हैं इनको अरेस्ट करें. मुझे ऐसा लगता है आप पॉलिटिकल व्यक्ति को जब वेंडेटा करते हैं वो उल्टा फेवर आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस पार्टी के फेवर में चला. लेकिन शेट्टी साहब, आम आदमी पार्टी तो इतनी छोटी सी पार्टी है, इट्स सच अ स्मॉल पार्टी. आई मीन क्या, आई फाइंड इट वेरी स्ट्रेंज. But today they have government in 2 states. Yes, they do. And Punjab and Delhi. Yes, and in fact there was a raid today in Punjab minister's house. आज एक पंजाब के मंत्री के घर में आज रेड भी हुआ है. ये क्या हुआ? No, the point is what we were discussing, and Bajaj sir, what is the government formed for? The government is formed to make policies for the state. Aam Aadmi Party or Congress or BJP, whichever you elect a group of people, politicians, MPs who govern you, who makes policies for the state. And how can you challenge those policies if it's good for the state? Who decides upon that? तो ये एक बहुत बड़ा विषय बन गया कि हर स्टेट के पॉलिसी को अगर चैलेंज करोगे, उसको आप ईडी के एफआईआर फाइल करोगे, सीबीआई कम्स इन फॉर इन्वेस्टिगेशन, then what are we looking at? We are looking at total disharmony where everything is concerned. Paralysis हो जाएगा. प्रदीप जी इज राइट. स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई कानून बनाते हैं और आप एज सेंटर उसी को बोलेंगे कि ये पॉलिसी इज टू फेवर द लिकर माफियाज और आप रेड करना शुरू कर दोगे विदाउट एनी प्रूफ, क्योंकि मेन है करप्शन में कैश पकड़ा जाना बहुत इंपॉर्टेंट है. आज तक मनीष सिसोदिया के घर से हो या अरविंद केजरीवाल हो, किधर भी कैश has been taken or some transaction has happened, ये किधर भी प्रूव नहीं हुआ. तो मुझे ऐसा लगता है दिस इज प्योरली पॉलिटिकल वेंडेटा. और लेकिन राकेश शेट्टी साहब, ये इससे तो मुझे लगता है कि जो ऑपोजिशन अलायंस है आज इंडिया अलायंस है, उनका तो फायदा होने वाला है. मतलब वेरी फ्रैंकली भारतीय जनता पार्टी में इतने बेवकूफ लोग तो नहीं होंगे ना, मतलब उनको दिख नहीं रहा है कि क्या हो रहा है, क्योंकि सबकी सिंपैथी तो आपकी तरफ जा रही है. नहीं, देखिए अभी कैसा है ना, देश को डेली हर वीक में एक नया नैरेटिव ये लोग चलाना चाहते हैं जी. और ताकि जो ऑडियंस है दे शुड बी ग्लूड टू द टीवी. जैसे एक तरफ वर्ल्ड कप चल रहा है और वो जल्दी में न्यूज में देखोगे तो कुछ नेगेटिव न्यूज ही हम देखते हैं. तो अरविंद केजरीवाल को ईडी का नोटिस चला गया, राहुल जी को आईफोन का नोटिफिकेशन आ गया, तो वो अपना कोई काम नहीं है दिखाने के लिए, इसलिए ऐसे न्यूज और नेगेटिव्स पब्लिक के बीच में डालते
which becomes a point of discussion for everyone. बट राकेश शेट्टी साहब, इसी के बारे में अगर देखा जाए तो पिछले 4 के 5 दिन से, since the last time we met, I remember we met on the day when 8 of our naval officers had been sentenced to death by Qatar. उसके बाद आज तक उनके बारे में कोई बातचीत नहीं है सर। कोई बात talking नहीं, about it. कोई ट्वीट नहीं, कोई मतलब उसके बाद आप देखिए इतना बड़ा हो गया, किसी को कोई लेना देना नहीं है, एवरीवन इज बिजी। अभी ये सब न्यूज चलेगा जिस तरह बीच में उन लोग ने किया ना भारत वर्सेस इंडिया, ऐसे इनके पास बहुत ज्वलंत मुद्दे होते हैं जो वो लोग डाल देते हैं और फिर थोड़े दिन बाद करके उसको बेच देते हैं। तो आज वो नेवल ऑफिसर का कोई बात ही नहीं कर रहा। Not even the mainstream channels. I mean, they have huge budgets to send their correspondents to Jerusalem, but they cannot send somebody to Qatar. कि भाई देख के तो आओ क्या हुआ है। सर 1200 किलोमीटर दूर मणिपुर है, वहां पे नहीं जाते। 6500 किलोमीटर दूर इजराइल है, वहां पे चले जाते जी। मणिपुर कोई नहीं गया सर। मणिपुर तो 1200 किलोमीटर है दिल्ली से, वहां पे कोई नहीं जा रहा है। 6500 किलोमीटर दूर पहुंच गए। तो सर और सर इजराइल का वीसा 2 लाख रुपए में आता है और मणिपुर के लिए कोई वीसा की रिक्वायरमेंट नहीं है सर। रिक्वायरमेंट नहीं है, इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कंट्री जी। सर मैं आपको बताता हूँ राजीव जी, कुछ दिनों में ये जितने नेशनल चैनल्स है दे विल बिकम इररेलेवेंट। लोग देखना बंद कर देंगे क्योंकि आज ये न्यूज जो नेशनल न्यूज चैनल्स है ये लोग गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट के कारण जिंदा है। अगर आप देखते हैं यूपी गवर्नमेंट हो या केंद्र सरकार हो, इनका जो स्कीम्स दिखाने में ही बिजी है। तो मुझे नहीं लगता है आगे जाके नेशनल चैनल्स को कोई रेलेवेंस रहेगा। आज ही जो यंगस्टर्स है, जो जनरेशन एक्स है, जेन एक्स जिनको बोलते हैं, वो लोग ही देखना बंद कर दिए सर ये नेशनल न्यूज चैनल्स। No, but the only thing is that as far as coming back to Mr. Rahul Gandhi, as far as Mr. Rahul Gandhi is concerned, the impact he is having has grown tenfold almost. जो पहले उनका impact होता था उससे प्रभाव उनका कोई 10 गुना ज्यादा बढ़ा है। आज की तारीख में शायद उससे भी ज्यादा बढ़ा हो, क्योंकि आज की तारीख में जिस प्रकार राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं, जिस प्रकार उनका लहजा है, जिस प्रकार वो मेच्योर्ड तरीके से एक एक चीज सोच समझ के कह रहे हैं, सो योर स्ट्रेटेजी इज पेइंग ऑफ। जिस प्रकार आपकी रणनीति चल रही है बहुत जबरदस्त है सर। आसपास उनके जो एडवाइजर हैं बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। नॉट ओनली दैट सर, राहुल जी का एक व्यक्तित्व अगर आप देखते हो कि वो उस परिवार से आता है कि जहाँ पे उनकी दादी को गोलियों से भून कर मारा गया जी। वर्ल्ड्स मोस्ट सेफेस्ट प्लेस इज today sir, today October 31st 1984 sir, I was there in Delhi that day, yes. एंड सेकेंडली उनके पिताजी को आप जानते कि आतंकवाद हमले में चित्रे उड़ गए। तो उस डायनेस्टी से वो आदमी आते हैं और उनको नरेंद्र मोदी ने ईडी का नोटिस, उनके दफ्तर में 8-8 घंटा बिठा के रखना, उनको डराने की कोशिश किया गया। बीच में अदानी के खिलाफ बात करने के लिए एक पुराना केस वीडियो टेप लेके आते, जो बंद हो गया था वो लाकर उनका एमपी का सदस्यता भी रद्द करवा दी जी। अगर राहुल जी कंसिस्टेंट है, वो डरते नहीं है, ना वो डरने वाले हैं, और वही सीख वो कांग्रेस के वर्कर्स और कैडर्स को बता के कि हम डरेंगे नहीं करके इस चीज और दैट व्हाट इज पेइंग ऑफ। आज पब्लिक का परसेप्शन इज कंप्लीटली चेंज। राहुल जी has emerged as one of the top leader in Congress party. As you know now, our president is खड़गे जी, मगर हमारा जो लीडरशिप का चेहरा है वो राहुल जी है। Priyanka Gandhi ji ne, when India abstained from voting in the UN resolution for ceasefire Palestine Israel, Priyanka Gandhi went aggressively against the government. But this is wrong. What you have done by abstaining from voting is wrong. But what the government said, there was no reference to Hamas as a terror organization in the UN resolution. Hamas. But Priyanka Gandhi, Mahatma Gandhi ji का उदाहरण देते हुए कहा कि eye for eye makes the whole world go blind. She said the government has forgotten Mahatma Gandhi's ideals and philosophy. Now Priyanka Gandhi talking so aggressively on international relations where India is concerned, we have not seen it before. How do you see that, Rakesh Shetty sir? सर आपने देखा होगा कि इंटरनेशनली अपने देश के प्राइम मिनिस्टर ने कितना
पॉलिटिकल पैरालिसिस कर दिया है कि एक तरफ उन्होंने हमास को क्रिटिसाइज किया, जो आतंकवाद था उसको तो क्रिटिसाइज करना ही चाहिए था। दूसरी, उन्होंने पैलेस्टाइन के लिए एड भेजा। जब आपने पैलेस्टाइन के लोगों के लिए एड भेजा जिसका सब लोग स्वागत कर रहे हैं, यू शुड स्टैंड इन द यूएन और यू शुड वोट फॉर सीज फायर। ये आप इतना नहीं कर सकते एज अ लीडर, क्योंकि लीडर इज नोन फॉर टेकिंग टफ डिसीजंस। आज के डेट पे आप इजराइल को नाराज नहीं करना चाहते, आप क्या इजराइल से डरते हैं? और अपना देश का जो कॉन्सेप्ट है, महात्मा गांधी जी का जो कॉन्सेप्ट है, इट इज पीस एंड हार्मनी। गौतम बुद्धा जी का जो कॉन्सेप्ट है, इट इज पीस एंड हार्मनी। और हमेशा पंडित जवाहरलाल नेहरू से आज तक अगर आप देखते हैं, उन्होंने तो अपना थर्ड फ्रंट बना दिया था, नॉन अलाइड मूवमेंट। मतलब ना हम लोग यूएसए के साथ है, ना हम लोग यूएसएसआर के साथ है, और ही द लीडर ऑफ दैट। तो आपको उनके पद चिन्ह पर चलकर सीज फायर के लिए वोट करना चाहिए था, मगर आप ये दिखाते कि आप इजराइल से डरते हैं, आप उनके दबाव में हैं, इसलिए वहां पे आप यू अब्सटेन फ्रॉम वोटिंग, जो बहुत ही गलत बात है। एंड एक्चुअल में वो इंटरनेशनल मीडिया का न्यूज था, अपने इंडियन नेशनल न्यूज चैनल से उसको ज्यादा टेकअप नहीं किया, नहीं तो उसको इट वुड बी क्रिटिसाइज्ड इन आवर कंट्री। दैट्स राइट। राकेश शेट्टी साहब, चलते चलते जो बाकी 5 के 5 स्टेट्स हैं उसमें कैंपेन किस प्रकार की चल रही है? बिकॉज एज यू नो एवरीबडी गेट्स डाइवर्टेड इन ऑल दीज इशूज। अब रियल इशूज आर देयर विच द कांग्रेस पार्टी इज रेजिंग, स्पेशली देखिए राजस्थान के अंदर जो आप लोगों ने सोशल इम्पैक्ट की जो गारंटीज दी हैं उसको लेकर के, और जो स्कीम्स अशोक गहलोत साहब ने जो इंट्रोड्यूस करी हैं, मतलब दे आर डूइंग क्वाइट वेल। मध्य प्रदेश के अंदर भी जो गारंटीज दी हैं, छत्तीसगढ़ के अंदर ऑफ कोर्स योर गवर्नमेंट इज डूइंग वेरी वेरी वेल इंडीड। मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस बहुत आगे है, सुनने में ये आया है। और तेलंगाना में भी द लेटेस्ट सर्वे शोज द कांग्रेस इज अहेड even of BRS, which is very surprising. At least surprising for me. I thought BRS was very very deeply entrenched, but आपके जो लीडर है वहाँ के लोकल लीडर साहब जो हैं वहाँ पे, क्या नाम है उनका? रेवंत रेड्डी। हाँ, रेवंत रेड्डी साहब, उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया। I would like to inform you, I have been made observer for the Telangana state, entire state. Fantastic. You guys are doing extremely well. Garib Kalyan Yojana is unbeatable, and BJP doesn't have an alternative to that. तो उस विषय के बारे में जरा बताएं सर, प्लीज। We get connected. I'll hopefully at Hyderabad or traveling among my cadres and people at Telangana. तो उसके बारे में जरा बताएं सर, जहाँ तक इन स्टेट्स का सवाल है। तेलंगाना has you know see voter survey हुआ हाल ही में जी, भारतीय जनता पार्टी ने अभी हाल ही में सर्वे किया है। द रिजल्ट व्हाट वी यूज्ड टू बिलीव दैट आउट ऑफ 5 4, बट वेरी सरप्राइजिंगली द लेटेस्ट सर्वे वी आर वेरी सरप्राइज्ड टू सी all 5 states we are going to win. Fantastic. You know, in Mizoram, the Prime Minister has not gone there probably because the CM refused to share the dice with him. So, correct. If the Prime Minister himself is not going to Mizoram. Sir, see what the problem with Mizoram was and is that we need to understand majority of people there are Christians. मणिपुर में नंबर ऑफ चर्च को तोड़ा गया, जलाया गया, और वही लोगों को ज्यादा वहां पे उन्हीं के ऊपर अन्याय किया गया। मगर प्रधानमंत्री हो, केंद्र सरकार ने ना मुख्यमंत्री, ना वहां के पुलिस कमिश्नर, ना वहां पे कुछ भी एक्शन लिया गया। इवन टुडे वहां पे कोई कार्रवाई उन्होंने नहीं किया। आई एम वेरी सरप्राइज्ड अबाउट दैट। एज फार एज बीरेन सिंह साहब इज कंसर्न, ही सीम्स टू बी द फेवरेट ऑफ दिल्ली इन स्पाइट ऑफ मणिपुर में इतना कुछ हुआ है, मतलब छोटी सी बात पे मुख्यमंत्री बदल दिया जाता है। इट इज कॉल्ड एरोगेंस। आप कांग्रेस का याद करिए सर, कोई आरोप लगता था तो इमीडिएटली मुख्यमंत्री को हटा दिया जाता, मंत्री को हटा दिया। सर, रेल मिनिस्टर को हटा दिया गया। उनके नेफ्यू ने उनके घर में उनका टेलीफोन गलत इस्तेमाल कर लिया तो उनको रिजाइन करने के लिए कह दिया गया सर, रेलवे मिनिस्टर को। सर, नॉट ओनली दैट सर, आई विल टेल यू, बेगूसराय रेलवे स्टेशन में रेल हादसा होता है जी। देश के रेल मंत्री हमारे लाल बहादुर शास्त्री थे जी, रिजिग्नेशन कर दिया था सर उन्होंने। सर, एक इंडियन एयरलाइंस का एक हादसा हुआ, इंडियन एयरलाइंस का एक हादसा हुआ, उज़्बेक प्लेन था कोई,
it was under wet lease to Indian Airlines. Not one single person died. एक भी आदमी मरा नहीं था सर, एक भी नहीं. Correct. I think it was 92 or 93, if I'm not mistaken. Mr. Madhav Rao Scindia resigned instantly. Right. Correct, sir. Yes. So You know, one thing, that kind of thing is not there anymore. No, not at all. you know, Sharita, one thing that we always discuss, and Bajaj Sahab, that you got fantastic leadership in the states. Ji. Decentralized, you have delegated powers in the state, unlike the BJP where all control is in the center. Every control in the center, state there is no leadership. In fact, if there's a leadership, they're destroying it. Like in Madhya Pradesh, they want to destroy Mama, Shivraj. So, Sir, four times जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा शिवराज चौहान, they are not taking his name. Exactly. Narendra Modi shares the stage with 4 times CM Shivraj Chauhan and he says, vote for Kamal. Don't look at any leader, vote for Kamal. That's what Prime Minister says. That means you are discrediting your own Chief Minister. Madhya Pradesh, Rajasthan, there is no decentralized leadership where BJP is concerned, but you have got minimum two great leaders who are fighting with each other and very cooperative. They're listening to the High Command and they're fighting also together. That's a great asset where Congress is concerned, which we always discuss. You have decentralized power, you have decentralized leadership, you are allowing them to grow and they are doing wonders for you. Correct. So I hope that continues, Mr. Shetty, because what happens to the Congress is, as I've observed, and I've been a journalist, as you know, for a very long time, much longer than even my beard, and my beard, as you know, is white. I remember when you started with Sahara. Yes, I started much earlier than that, but He saw you in Sarah. yes, but I'll tell you, when the Congress comes to power, then the Congress starts to destroy the regional leadership. I hope that does not happen this time. No. I hope. And I also hope, Mr. Shetty, you might find this funny, but मैं उम्मीद करता हूं कि जिन लोगों ने ईडी, सीबीआई, डीआरआई, इनकम टैक्स, ये सब एजेंसीज के डर से कांग्रेस को छोड़ करके जाना था, मैं उम्मीद करता हूं सब लोग चले गए. अब कोई नहीं जाएगा. Yeah, correct. That's true. जिनको जाना था वो चले गए और जो बच गए वो हमारे रॉयल कांग्रेसी हिसाब में मान के चल रहा हूँ. और बहादुर कांग्रेसी. बहादुर कांग्रेसी. जी, आखिरकार as राहुल गांधी जी and प्रियंका जी, they are so fond of saying again and again कि भाई हम लोग अंग्रेजों से नहीं डरे तो आप लोग क्या हैं. Correct. बहुत बड़ी चीज. हम लोग एक नारा देते हैं सर. जी. तब लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से. That what is our. क्या बात है. I all the very best to you. All the very best to you, and I hope the old tradition of the opposition and the ruling party having mutual respect for each other comes back. I hope. You hope, but I think that's gone to such an extent that there is no comeback from there because Pradeep ji, they are so hostile towards each other. भारत की बढ़ोतरी के लिए, भारत की प्रगति के लिए वो दौर वापस आना चाहिए कि एक दूसरे की म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो. No, as far as Congress goes, we are very clear that we don't have any personal enmity with any of the BJP leaders. विचारधारा की लड़ाई है, मनभेद नहीं है, मतभेद है, बस. Thank you so much, sir. Rakesh Shetty साहब, बहुत धन्यवाद आपका, and congratulations for having been made observer for Telangana. Thank you, sir, and Jai Hind. Jai Hind, Vande Mataram, Jai Hind. That is nice. Our friend Mr. Rakesh Shetty is now observer for Telangana. That's really truly nice. But you know, they'll win in all the 5 states. I think they'll win in 4 states at least. See, the aura is totally in that direction. The aura is that, you know, one, you have the it's a Garib Kalyan Yojana इनके बेमिसाल है. Now BJP says 9 साल बेमिसाल. प्रदीप जी, इनके गरीब कल्याण योजना is impossible. You can't beat it. You don't have an alternate plan there. प्रदीप जी, राज्यों में ये जरूर जीतेंगे, लेकिन लोकसभा के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. जहां तक लोकसभा का सवाल है, वहां पे नरेंद्र मोदी का कोई हाथ पकड़ नहीं सकता फिलहाल. वहां पर जरा मुश्किल पड़ेगी इंडिया अलायंस को, मुझे ऐसा लग रहा है. हो सकता है कि इनके पास कोई ज्यादा अच्छी स्ट्रेटेजी हो, बहुत अच्छी रणनीति हो सकता है. नहीं, आप जो कह रहे हैं वो सही है. आज के तारीख में इफ यू सी इंडिया अलायंस एज अ नेशनल प्लेयर, you know, it's
You're nowhere near Mr. Modi where leadership is. You don't have a leader. You say we'll select our leader later on, but you don't have a prime minister candidate. Who's the prime minister candidate where India Alliance is there? Kejriwal ji is a potential. Mamata Banerjee is a potential. Mallikarjun Kharge is a potential. Rahul Gandhi is a potential. And Mr. Stalin. And now you can't Priyanka Gandhi जिस प्रकार से international affairs में बोलने लगी है. I mean you can't discount her. MK Stalin साहब भी हो गए, बाकी सब लोग भी हो गए, मतलब वो तो है, लेकिन I think Stalin was very nice, humble and very well occupied with Tamil Nadu. He doesn't want to leave. लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी जी के आसपास कोई है नहीं इस वक्त। Exactly. जहाँ तक पॉपुलर इमेजिनेशन का सवाल है, लेकिन वोट शेयर का अगर आप सवाल देखें तो इंडिया अलायंस का जहाँ तक प्रश्न है वो माशाल्लाह बहुत Sir, votes are huge. There's a huge difference and it will be very difficult for the BJP to match that in spite of Mr. Modi.